Assalamu alaikum students. Welcome to your computer class. How are you all? I hope all of you are doing well. As you know, in our previous lesson, we just started our chapter data verification and validation. Chapter number 7, right? Half of the portion related to data verification is already done in our previous lesson. Half of the portion related to data validation is remaining. So today we will read about and discuss about data validation. So before watching this video, kindly do grab your computer books and notebooks for notes. And after that, start watching this lesson. All right? Contents of today's lesson are validation, validation checks, table of validation checks and usage, differences between verification and validation. So you will learn about all these contents in this lesson. First of all, we will discuss about data validation. Data validation means checking the accuracy and quality of source data. After data verification, the entry of data in our computer from the source data, after verification, like after data integrity, the characteristics of accuracy, completeness, and sensibility, there is another validation stage which is basically used for quality of source data. सो वेरिफिकेशन के बाद डाटा को वेरीफाई करने के बाद कि ये कंप्लीट है, एक्यूरेट है और इसकी सेंस भी है, प्रॉपरली सेंसेबल है डाटा, तो नेक्स्ट जो स्टेज को मूव किया जाएगा डाटा को वो है डाटा वैलिडेशन. Data validation involves checking whether data lies within a sensible range. Data validation is the process of ensuring data to be correct and useful. Right? Basically, data validation is an automatic computer check to ensure that the data entered is sensible and reasonable. It does not check the accuracy of data in that sense. जिस सेंस में डाटा वेरिफिकेशन डाटा को accurately verify करता है, but it is checking the accuracy of source document, right? For example, a secondary student is likely to be aged between like 11 or 16. The computer can be programmed only to accept numbers between 11 and 16. मतलब कंप्यूटर में सिर्फ 11 से 16 तक की रेंज मेंशन की गई है कि स्टूडेंट की एज इनमें लाई करेगी. This is a range check, right? So this is the check of the validation. However, this not guaranteed that the number type is correct. For example, if the student is entering his age like 14, but it's like his age is of 12 or 13, so ये जो surety है validation कि ये incorrect है या correct है, ये validation में lie नहीं करेगा. It is the form of data cleansing. Like इसमें check में जो यूजेबल नहीं है, डाटा जो इनकरेक्ट है या हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है, उसकी क्लेंजिंग कर दी जाती है, राइट? सो हियर आर सम वैलिडेशन चेक्स. It is also in your books, so you can check them over page number 89. Validation checks. So basically there are numerous validation checks which can be applied to ensure data validity. These checks can be placed at different stages of processing cycle. This reduces the chances of invalid data being processed. So some of the important validation checks are described below. Like the first one check is an alphabetic check. It ensures that only letters are entered in a field. So इसमें जो इंश्योरिटी की जाती है वो इस चीज़ की है कि अल्फ़ाबेटिक जहाँ पर रिक्वायर्ड हैं अल्फ़ाबेट्स वहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिक फील्ड में अल्फ़ाबेट्स ही टाइप किए जाएं। The next one is numeric check. It ensures that only numbers are entered in a field. यानी जिस numeric field में numbers required हैं वहाँ पर सिर्फ numbers लिखे जाएंगे. A consistency check tests the data in two or more associate fields to ensure that it is logical or not. ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में लॉजिकली या सेंसिबिलिटी की इंश्योरिटी की जाती है इस चेक स्टेज में, राइट. A completeness check ensures that necessary data has been entered. यानी जितने भी fields required हैं उनमें सारी information को मेंशन किया गया है, सारी fields जो हैं वो complete हैं या नहीं. A range check ensures that numbers entered are neither too long or too small. जो रेंज चेक है इसमें रेंज सेट कर दी जाती है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया है, द रेंज चेक ऑफ द स्टूडेंट एज. लाइक सेकेंडरी स्कूल में 11 to 16 एज के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं या पढ़ते हैं. सो 11 से 16 तक की एज जो है वो रेंज चेक है, तो इससे ना कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. Spelling and grammar checks. It helps the computer to check for spellings, grammatical mistakes. स्पेलिंग चेक में स्पेलिंग चेक किए जाते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक किया जाता है, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इसके अलावा टेंसेस की जो सेंस है उसको वेरीफाई किया जाता है कि वो प्रॉपरली लिखे गए हैं या नहीं. Data validity can be checked by watching an item of data against all the valid form of data contained in a table. So some sense of validity will be lied in that sense कि जितने भी forms of data हैं जो table में required हैं वो proper हैं या नहीं. So here is an example of a person's visiting card, Harris Insurance, right? So there is the alphabet check over Harris Insurance because इसमें सारे के सारे alphabets होने चाहिए, तो इस पे alphabetic जो field है वो apply की जाती है, तो alphabet जो check है यहाँ पर lie करेगा, right? There is a numeric check ऑन सेल नंबर्स, क्योंकि सेल नंबर्स हमेशा नंबर्स में होंगे, फ़ोन नंबर्स हमेशा नंबर्स में होंगे, और फैक्स में यहाँ नंबर्स दिए गए हैं, सो इन सब पर नंबर चेक अलाउ किया जाएगा, नंबर चेक अप्लाई किया जाएगा. नेक्स्ट जो है वो है कंसिस्टेंसी चेक. सो एज़ यू नो कि जितने भी आईडीज़ होते हैं मेल करने के लिए वहाँ पर @साइन या .com का होना ज़रूरी है, और अगर ये कुछ ज़रूरी चीज़ें उसमें नहीं होंगी तो वो बिल्कुल भी ईमेल आईडी नहीं कहलाएंगे, तो इस चीज़ के लिए इनका होना ज़रूरी है. विदाउट दैट देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी, दे आर इलॉजिकल. तो ये बिल्कुल भी एक प्रॉपर आईडी मेंशन नहीं हो सकेगी, इसलिए इनका होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ द सिंपल एग्जांपल्स टू यू ऑल. रेंज चेक है यहाँ पर, तो रेंज चेक अगेन यहाँ पर नंबर्स को ले लें कि कितने डिजिट्स होते हैं नंबर्स में, अगर उनमें कम नंबर्स आते हैं तो रेंज से वो कम हैं, और अगर ज़्यादा आते हैं तो वो रेंज से ज़्यादा हैं, जो कि प्रॉपरली किसी को कांटेक्ट करने के लिए यूज़फुल नहीं होंगे, तो रेंज चेक यहाँ पर अप्लाई कर लिए. स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल चेक्स को ले लेते हैं, तो अगर आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे इंश्योरेंस के तो वो स्पेलिंग चेक से चेक किए जाएंगे, और अगर कोई पंक्चुएशन मार्क्स हैं या यहाँ पर एक कोई टेंस लिखा गया है या कुछ रिक्वायर्ड है, लाइक यहाँ पर कॉमा है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ग्रामेटिकल चेक में चेक किए जाएंगे. तो मेरे हाथ से आपको एग्जाम्पल के थ्रू जितने जो चेक्स हैं वो क्लियरली मेंशन हो चुके हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टेबल ऑफ वैलिडेशन चेक्स एंड यूजेज. सो मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर दिया है चेक्स का, जो आपको हेल्पफुल होगा इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो हेयर इज़ द टाइप्स ऑफ वैलिडेशंस, validation checks, how it works, and then
example of example of their usage, example of that validation check usage. The first one is check digit. ठीक है, तो digit है ये, so start करते हैं. The last one or two digits in a code are used to check the other digits are correct. For example, barcode readers in a supermarkets use check digits. तो उनमें बारकोड्स में नीचे डिजिट्स होते हैं जो वेरीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, कि ये जो डिजिट्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स के डिजिट्स हैं वो हमारी मार्केट से परचेज़ किए गए हैं, या ये जो प्रोडक्ट के डिजिट्स हैं मेंशन कर देंगे आपको कि ये प्रोडक्ट्स हमारे से हमारे पास कितने हैं स्टॉक में, कितने लेफ़्ट हैं, कितने और ऑर्डर करने हैं, या फिर ये इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं. ये सारी बारकोड्स में से जो डिजिट्स हैं उनके साथ वैलिडेशन चेक, जो कि चेक डिजिट है, उससे चेक किया जाएगा. राइट. नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेट चेक. चेक्स द डाटा इज़ इन द राइट फॉर्मेट. फॉर्मेटिंग चेक की जाती है इस चेक में. A national insurance number is in the form of LL double line double line double line, where L is any letter and 9 is any number. तो जो उन्होंने फॉर्मेट बनाया है उसमें लेटर्स होने चाहिए और नंबर्स होने चाहिए. तो सीक्वेंस क्या है? लेटर्स एंड देन नंबर्स. राइट. सो L is letter, any letter they have, and then 9 is another number, any number in it. The next thing is consistency and length check. Checks the data isn't too short or too long, right? A password which needs to be 6 letters long. आपको पता है पासवर्ड्स जो होते हैं नॉर्मली रेंज चेक में ज़रूर मेंशन किए जाते हैं कि या तो 4 डिजिट्स का होना चाहिए, 6 डिजिट्स का होना चाहिए. In some time they might be asked to make a password, might be entered a password of 12 or 14 digits, right? तो ये रेंज चेक वहाँ पे अप्लाई की जाती है. डिफरेंट आईडीज़ और अकाउंट्स में आपको जब पासवर्ड्स मेंशन करते हो या जब क्रिएट करते हो अकाउंट या आईडीज़ को, तो आपने देखा होगा कि रिक्वायरमेंट्स में ज़रूर मेंशन होता है कि आपका पासवर्ड जो है इस रेंज में होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो वो इनकरेक्ट होगा. लुकअप टेबल looks up acceptable values in a table. Like there are only 7 possible days of a week. If you will enter 8 days or 10 days in a week, तो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है. या फिर आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लो कि आप जो ग्रेडिंग होती है आपके मार्क्स की, वो ग्रेडिंग होती है A से F तक. ठीक है, उसमें D नहीं होता, उसमें C एंड देन सिंपली इट्स टू लाइक F. तो आप जब उसको चेक करते हो तो 80s में जब आपकी परसेंटेज आती है तो ग्रेड विल बी A, and whenever the percentage of yours is in 90s, so the grade will be A plus. तो टेबल लुकअप में चेक किया जाता है कि जो परसेंटेजेस हैं उनसे रिलेटेड ग्रेड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं. ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके 90% मार्क्स आ रहे हैं आपको A ग्रेड दे दिया जाए या B प्लस दे दिया जाए, क्योंकि वो टेबल में मेंशन्ड नहीं है और इनकरेक्ट है. एंड द लास्ट वन इज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक. लुक्स अप वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. ठीक है, डिक्शनरी आपके पास होती है, इवन थिसॉरस भी होता है जिसमें आपके स्पेलिंग और कुछ रेलिवेंट वर्ड्स आपको मेंशन किए जाते हैं, सिमिलर वर्ड्स आपको मेंशन किए जाते हैं. और ग्रामर चेक के लिए पंक्चुएशन मार्क्स हम लोग लगाते हैं, तो उसके लिए चेक किए जाते हैं. एग्जाम्पल है आपके पास व्हेन वर्ड प्रोसेसिंग. तो आप जब वर्ड प्रोसेसिंग में यानी MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है जब आप इनकरेक्ट स्पेलिंग एंटर करते हो तो उसके beneath एक रेड कलर की लाइन मेंशन कर दी जाती है which mentions that there is a spelling mistake in it, and whenever you have a mistake related to your grammar there will be a blue or green line beneath the place where there is an error. ऑलराइट क्लास. तो ये सारे के सारे वैलिडेशन चेक्स और जो आपको पहले भी मैंने पढ़ाए हैं यानी जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको, वो मैंने
आपको अच्छी तरह से मेंशन कर दिए हैं, और यहाँ पर तो मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ मेंशन कर दिए हैं। एक प्रिसाइज सा टेबल क्रिएट किया था मैंने, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए वैलिडेशन के जो चेक्स हैं उनके टाइप से रिलेटेड, उनकी वर्किंग और फिर उनकी एग्जांपल्स के साथ। तो आप अच्छी तरह से इसको क्लियर कट अपने माइंड में फीड कर सकते हैं, आई गेस। So that's all for your validation checks. So where is the differences between verification and validation, right? So verification के बारे में भी हमने पढ़ा, validation के बारे में भी पढ़ा। तो अब ज़रा एक clear cut difference कर लेते हैं verification और validation में। So data verification checks are placed at the earliest stage of the data processing cycle. This helps to prevent incorrect data from entering the system, ठीक है। तो ये प्रोसेस के अर्लीस्ट स्टेज में किया जाता है और इनकरेक्ट एंट्री से अवॉइड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। While on the other hand, data validation checks can be placed at the stage of data processing cycle, right? तो इसमें क्या किया जाता है, while processing cycle stage पे किया जाता है इसको। This helps the computer to ensure that the data remains within a sensible range. इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो वेरिफिकेशन स्टेज में सोर्स डाटा से एंटर किया गया है डाटा, वो सेंसिबल रेंज में है या नहीं, वो इनकरेक्ट है या नहीं, उसमें सेंस है या नहीं। मेक श्योर द डाटा एंटर्ड इज़ द सेम एज द सोर्स, राइट। वेरिफिकेशन में ये कंफर्मेशन की जाती है कि सोर्स डाटा जो है वो एंटर्ड डाटा सेम है या नहीं। Make sure the data entered meets the specified criteria. Criteria like checks जो हैं उन पर अप्लाई किए जाते हैं, तो क्या वो उन क्राइटेरिया में लाई करते हैं या नहीं, उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हैं या नहीं, उन चेक्स में प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द चेक्स ये करेक्ट एक्यूरेसी या सेंसिबिलिटी दे रहे हैं नहीं, क्योंकि इसके बाद ही उनके यूज़फुल होने का या फिर यूज़लेस होने का एक डिक्लेरेशन हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छी तरह से वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के जो पॉइंट्स हैं वो समझ आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल इसमें डिफरेंस भी आ चुका है। So at the end of the lesson there is an activity. Do read page number 88, 89, 90 and 91. You have to read your summary points as well and do learn them as well. And after that, solve your worksheet properly. So there is always a worksheet for you to solve it at the end of every lesson. So do solve it carefully, and after that do submit the worksheets of yours at the right time of your submission. Don't make them more late than the exact date or day. So take care of yourself. Allah Hafiz.